हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज बेटे आपां क्लास +2 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਔਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫ ਸਮਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡਸ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਫੈਰਿਕਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪਲੇਸਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨੀ 1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ? 2। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ when particles are placed in 1 dimension is 2। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਔਰ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੇਅਰ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ A ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ AAA ਟਾਈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 52.4% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੇਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਹੈ, ਗਰੂਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਪੇਸ ਦਾ 60.4% ਹਿੱਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟੱਚਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1 2 3 4 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 4। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ A ਲੇਅਰ ਔਰ B ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ AB ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 6। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਪੈਕਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 8 ਕਿਊਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੀਸਰਾ ਕਿਊਬ, ਆ ਚੌਥਾ ਵਾਲਾ, ਆ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਕਿਊਬਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ 1/8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਊਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਪਰ यूनिट सेल?
क्यूब दे 8 कॉर्नर्स होंगे है ना, ठीक है। क्यूब दे 8 कॉर्नर्स हैं और सारे कॉर्नर्स दे उत्ते लाइक दिस तुहानू बेटा क्यूब ड्रॉ करना आंदा होएगा। जे आपां इस तरीके नाल क्यूब ड्रॉ करते हैं तां, ठीक है। सो इस क्यूब दे विच बेटा हर एटम दा, हर सफीयर दा 1/8वां हिस्सा आंदा है। सो एक क्यूब दे विच कुल किन्ने एटम्स आएंगे? 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कॉर्नर्स है क्यूब दे। सो 1 एटम जिहड़ा है सिंपल क्यूबिक दे विच पर यूनिट सैल, इनू बेटे आपां अगे जाके Z दी फॉर्म च पढ़ांगे। सो Z = 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, A ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਰੂਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, A ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ B ਲੇਅਰ ਰੱਖਤੀ ਔਰ B ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ A ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਰੱਖਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ HCP ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਮੈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HCP ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਕਸਾਗਨਲ क्लोज पैकिंग ਹੁੰਦੀ है। और जे ਆਪਾਂ देखिए कि A ਦੇ ग्रूव्स ਦੇ कैविटीज ਦੇ ਵਿੱਚ B लेयर और B ਦੀਆਂ कैविटीज ਦੇ ਵਿੱਚ C लेयर इस तरीके ਨਾਲ ਆਵੇ कि A ਦੇ ਉੱਤੇ B ਦੇ ਉੱਤੇ C ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही कहने हैं। इत्थे देखो जरा तुहानू ये चीज़ 3 डायमेंशनली एनीमेटेड फॉर्म दे विच दिखाने की कोशिश की गई है कि ब्लू लेयर दियां जिहड़ियां खाली थावां है ना कैप्स, उन्हां दे उत्ते येलो लेयर्स आ रही है, येलो बॉल्स की लेयर आ रही है, और येलो वालियां जिहड़ियां खाली थावां है बेटा उन्हां दे उत्ते ग्रीन दी लेयर दिख रही है, ग्रीन कलर के पार्टिकल्स दी। नाउ जिहड़ी ब्लू पार्टिकल्स दी लेयर है ये एग्जैक्टली 4th लेयर बनती है जिहड़ी पहले दे एग्जैक्ट ऊपर है। सो जे आपां इसे तरीके दे नाल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की गल करते हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिहड़ी है 2 तरीकों की हो सकती है। एक तो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और दूसरी होंदी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंटर दे विच क्यूब दे सेंटर च एक एटम पे है और बाकी कॉर्नर्स दे, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, और बाकी जिहड़े हैं वो कॉर्नर्स ते मौजूद है। सो कॉर्नर वाले जिहड़े एटम्स है, सफीयर्स हैं, वो कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिंदे हैं? 1/8। किन्ने कॉर्नर हुंदे हैं? 8। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स वो किन्ने बन गए? 1। और सेंटर दे विच एक एटम इकल्ला पिया हुआ है, आ वाला सेंट्रल एटम दिस। सो 1 + 1 टोटल किन्ने एटम्स बन गए BCC दे विच? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दे विच इट इज 2। और इत्थे मैं तुहानू हुणे कहा सी Z = 2। Z मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। और जे यही आपां बेटा जी फेस सेंटर्ड दे लई करना होवे, सो जे आह एक क्यूब ते दूजे क्यूब दे फेस, दिस इज द फेस ऑफ द क्यूब। सो जे फेस दे सेंटर च पे है तो दैट मीन्स फेस ते इस सफीयर दा अद्धा हिस्सा एक क्यूब दे विच और इस सफीयर दा अद्धा हिस्सा दूजे क्यूब दे विच। सो इस दे अकॉर्डिंगली अपने कोले किन्ने नंबर ऑफ एटम्स F सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सैल दे विच होणगे? सो इत्थे बेटे आह जिहड़े हर एक फेस दे, दिस इज द फेस इन दे सेंटर ते जिहड़ा पिया होया है, सो ये अद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इस डायग्राम चो बेटे तुहानू ज़्यादा समझ आ रहा होएगा। अद्धा एटम जिहड़ा फेस दे सेंटर च है। सो किन्ने फेसिस होंदे हैं बेटा जी? क्यूब दे 6 फेसिस होंदे हैं ते अद्धा एटम जिहड़ा है वो हर फेस ते पर यूनिट सैल है। सो 6 × ½ किन्ने एटम बन गए? 3। इस तो इलावा कॉर्नर्स से 1/8 है, सो उन्ना करके अपने को ले 1 एटम ए आ जाएगा। सो 1 + 3 टोटल इट मेक्स 4। सो FCC दे विच Z 4 हुंदा है, ये आपां याद रखना है, ठीक है। सो नैक्सट जो आपां बेटा इहदे विच स्टडी करना है वो आ जांदियां हुण अपने कोले वॉइड्स। जदों एक लेयर दे उत्ते दूजी लेयर प्लेस करते हैं ना बेटा, तो विचकार कुछ खाली थावां रह जांदियां।
इन्हां खाली थावां नूं आपां कहने हैं voids। voids दो तरह दीयां हुंदियां, tetrahedral voids ते octahedral voids। सो tetrahedral voids जिहड़ियां tetrahedral voids 4 स्फीयर्स दे नाल बनदी है, 3 स्फीयर और उत्ते चौथा रखा गया, तो विचकार जिहड़ी खाली जगह है उन्होंने असीं कहने हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और ज्योमैट्रिकली एक टेट्राहेड्रन की शेप की हुंदी है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल शेप्स की गल वॉइड्स की गल करते हैं तो याद रखना है कि जिन्नियां टेट्राहेड्रल वॉइड्स होणगियां ना वो एक्चुअली जिन्ने स्फीयर्स हैं उस तो दुगनियां होणगियां। इनू याद रखना है। जिन्ने स्फीयर है, सपोज n स्फीयर्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होणगियां। जे m नंबर ऑफ स्फीयर्स है तो 2m जिहड़े है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की गिनती होएगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दे विच जिन्ने स्फीयर्स हैं उन्नियां ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होणगियां। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जदों आपां गल करते हैं ना तो 6 स्फीयर्स एक दूजे दे टच च है तो विचकार जिहड़ी खाली जगह बनी उहनूं असीं कहने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दा जिहड़ा रेडियस है वो स्फीयर दे रेडियस नूं जे 0.414 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड दा रेडियस वो कितना होएगा, जे आपां स्फीयर दे रेडियस नूं 0.225 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिए तां होएगा वो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट इज रेडियस रेशो रूल। बेटे जे आपां कटायन और अनायन दे रेडियाई दी रेशो लै लैने हैं तो जिन्नी वैल्यू आएगी उन्होंने असीं कहांगे रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो दी वैल्यू तो सानू समझ लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। जे तां रेडियस रेशो 0.155 तो 0.225 दे विचकार है तां पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3 ते स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर होएगा। पर जे रेडियस रेशो 0.225 तो लेके 0.414 है तां पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। ते जे रेडियस रेशो 0.414 तो 0.732 तक है तां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। जे रेडियस रेशो 0.732 तो 1 तक है तां कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8 एंड अरेंजमेंट इज क्यूबिक। बेटे इन्हां दे कई बारी क्वेश्चन दे विच सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट या NaCl टाइप अरेंजमेंट लिखा हुंदा है। सो उनका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl है तां 6, सीजियम क्लोराइड है तां 8। सो हुण अपने कोले कुल मिला के जो हुण तक आपां पढ़िया ना उहदे च आपां इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बारी रिवाइज कर लिए। सिंपल क्यूबिक दे विच 52.4% जगह ऑक्यूपाई हुंदी है, बाकी जगह खाली हुंदी है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक दे विच 68% और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे विच 60.4% पैकिंग एफिशिएंसी है। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल होल जे स्फीयर दे रेडियस नूं 0.225 नाल गुना कर दिए और ऑक्टाहेड्रल होल दा रेडियस जे रेडियस ऑफ स्फीयर नूं 0.414 नाल मल्टीप्लाई कर दिए। जिन्ने स्फीयर्स हैं उन्नियां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होणगियां ते उन्हां तो दुगनियां टेट्राहेड्रल वॉइड्स होणगियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर जिंदे चो 3 मार्क्स क्वेश्चन आना है वो है डेंसिटी। किसी भी क्रिस्टल दी डेंसिटी जिन्हों असी रो नाल रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू Z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ A। A की हुंदा बेटा, A हुंदा है जिहड़ा आपां क्यूब कह रहे हैं ना। सो इस क्यूब दी जिहड़ी एज लेंथ है दैट इज A, ठीक है। और जिहड़ा स्फीयर्स प्रेजेंट है उन्हां दा जिहड़ा रेडियस है उन्होंने असी स्मॉल r कह रहे हैं। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दे विच A बिकम्स इक्वल टू जिद्दां तुसीं इत्थे देख ही सकते हो A इज इक्वल टू 2r। और जे BCC है तो BCC दे विच बेटा 4r इज इक्वल टू √3a और जे FCC है तो 4r इज इक्वल टू √2a।
इनू याद रखना है, इन्हां ते बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो सब तो पहला आपां 1 मार्क वाले न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर दे विच n सफीयर्स हैं ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਵॉइड्स हैं ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦੇ हैं उन्नियां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल वॉइड। सो टोटल वॉइड्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ n + 2n, इट इज इक्वल टू 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे किसी क्यूबिक सॉलिड दे विच दो तरह के एटम है p और q। ਜਿਹੜੇ Q एटम्स हैं वो क्यूब दे कॉर्नर्स ते मौजूद है और ਜਿਹੜੇ P एटम्स हैं वो बॉडी सेंटर ते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड की बनेगा ते कोऑर्डिनेशन नंबर P ते Q दा कितना होएगा। सो किन्ने P एटम्स पर यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर च मौजूद है, सो 1 होएगा। Q दे किन्ने एटम पर यूनिट सेल है 1। किवें, क्योंकि 8 कॉर्नर होंगे हैं, Q कॉर्नर से मौजूद है ना। सो 8 कॉर्नर होंगे हैं और 1/8 हर एक कॉर्नर ते एक सफीयर की कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी है, 8वां हिस्सा। सो फॉर्मूला की बनेगा, P दे एटम्स है अपने कोले 1, Q दे एटम्स है 1। सो फॉर्मूला अपने कोले P/Q 1। सो PQ इज द फॉर्मूला और कोऑर्डिनेशन नंबर की होएगा इन्हां दा 8 होएगा। थर्ड क्वेश्चन दे विच ਆਪਾਂ 4th और 5th क्वेश्चन दे विच भी सिंपल क्यूबिक दे विच किन्ने प्रेजेंट है एटम्स ते BCC च किन्ने प्रेजेंट है और FCC च किन्ने प्रेजेंट है, ये कैलकुलेट करने हैं। सो क्यूब दे जे कॉर्नर्स ते मौजूद हैं ਤਾਂ ਆਪਾਂ देखते हैं 8 कॉर्नर होंगे हैं और 8 कॉर्नर्स के अनुसार 1/8 सफीयर का हिस्सा हर क्यूब के अंदर होंदा है। सो एक टोटल एटम पर क्यूब, ठीक है, 1 एटम पर क्यूब। सो Z इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। BCC च Z कितना होएगा, सो 8 ता कॉर्नर एटम्स हो गए प्लस 1 जड़ा बॉडी सेंटर च होएगा, टोटल मिला के 2 एटम्स बन गए। Z इज इक्वल टू 2 फॉर BCC। जदों आपां FCC की गल करते हैं बेटा तब फेसेस किन्ने होंदे हैं 6, ठीक है, और हर एक फेस ते हाफ सफीयर जिहड़ा है एक यूनिट सेल दे एक क्यूब दे अंदर हुंदा है। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट इज 3। 8 कॉर्नर एटम्स है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। सो 1 + 3 इट इज 4। FCC दे विच Z अपने कोले 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कंपाउंड AX दे विच A पॉजिटिव कटायन दा रेडियस 95 पिकोमीटर है ते अनायन दा रेडियस जिहड़ा है 181 पिकोमीटर है। तो असी क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। बेटे असी कटायन दा साइज ते अनायन दा साइज इन्हां दोनों दी रेशो ले लैने हैं। तो वैल्यू इज 0.524। सो वैल्यू जिहड़ी है वो 0.414 तो 0.732 इन दे विचकार फॉल कर रही है आ वाली वैल्यू, ठीक है। सो बेटे ये सानू दसदा है कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल है ये। एक बारी बेटा फिर रिवाइज कर लिए आपां कि जिन्नी वैल्यू अपनी आंदी है ना वो केड़ी रेंज दे विच फॉल कर रही है तां सानू पता लगदा है कि साडा आंसर किन्ना आना है। सो ये याद करनियां पैनियां आपां नू। अपना जिहड़ा आंसर है वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल लैटिस है ते कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हुण इसे तरीके नाल ही आपां फिर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर किद्दां दा है वो दसना है। कटायन दा रेडियस 148 पिकोमीटर, अनायन दा रेडियस 195 पिकोमीटर। सो इनकी वैल्यू रेशो कितनी आ गई 0.759 और 0.759 जड़ा है वो दिस। सो इट विल बी अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। सो इत्थे आपां नू कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर नू आपां हीट करते हैं तां की होएगा।
बेटा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ 8:8 ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6:6 ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और इसी तरीके नाल 7th क्वेश्चन च सानू पूछे है कि जे NaCl स्ट्रक्चर यानी 6:6 स्ट्रक्चर नु आपां प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर च यानी कि 8:8 वाले च कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान नाल पढ़ो। एलिमेंट दा BCC स्ट्रक्चर है और एज लेंथ यानी कि A दिता होया 288 पिकोमीटर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ एटॉमिक रेडियस पूछा गया। सो फॉर्मूला की हुंदा है R is equal to √3/4A कादे ਲਈ BCC ਲਈ। सो A ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ 288 पिकोमीटर पुट कर ਦਿੰਨੇ ਆ, अपने ਕੋਲੇ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ अपने ਕੋਲੇ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। सो 2 मार्क्स क्वेश्चंस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ बस थोड़ी जी कॉम्प्लिकेशन ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ देखो एक कंपाउंड है ਜਿਹੜਾ कि A और B एलिमेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੈ और एक क्यूबिक अरेंजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ अरेंज्ड है। A एटम कॉर्नर्स ਤੇ मौजूद है, B एटम्स फेस सेंटर्स ਤੇ। सो A एटम ਜਿਹੜੇ ਹੈ बेटे ਉਹ 1 एटम पर यूनिट सेल होएगा और B ਜਿਹੜੇ ਹੈ फेसेस ਤੇ मौजूद है, ਇਹਦਾ मतलब वो 3 एटम्स पर यूनिट सेल। सो A एक है और हर एक यूनिट सेल च B 3 है। सो फॉर्मूला की बन जाएगा AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 एलिमेंट है PQR, वो क्यूबिक फॉर्म दे विच क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। P एटम कॉर्नर्स ते हैं, Q एटम क्यूब दे सेंटर ते हैं, R एटम जेड़े हैं वो सेंटर ऑफ द एज। बेटे इत्थे इस चीज नू समझो, सेंटर ऑफ द एज दा की मतलब है, जेड़ा हा एज है इनदे सेंटर ते मौजूद है, ठीक है, फेस दे सेंटर ते मौजूद नहीं है, इनू ध्यान नाल देखो। सो P एटम कॉर्नर से मौजूद है, दैट मीन्स 1 P एटम पर यूनिट सेल। Q एटम जेड़े हैं क्यूब दे सेंटर ते हैं, सो 1 एटम पर यूनिट सेल। R जेड़े हैं दे आर प्रेजेंट एट दी एजेस, सो 12 एज होंदे हैं क्यूब दे, ठीक है, और जेड़ा एज ते प्रेजेंट होएगा वो 4 क्यूब्स दे विच शेयर हो रहा है। 1/4 जेड़ा है वो हर क्यूब दे विच आ रहा है, 12 एजेस और हर क्यूब दे अंदर 1/4। सो 3 एटम्स होए। सो कुल मिला के किन्ने एटम होए? कुल मिला के 5 होए। फॉर्मूला की होया, एक P दा एक Q दा ते R दे किन्ने है? 3। फॉर्मूला बिकम्स PQR3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट A और B नाल मिलके कंपाउंड बनया होया है, क्यूबिक स्ट्रक्चर च क्रिस्टलाइज होया है। A एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स ते नाल दी नाल फेस सेंटर्स ते भी प्रेजेंट है। जेड़े B एटम है वो एज सेंटर ते प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर ते भी है। सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड की होएगा? A किथे किथे प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर्स ते मल्टीप्लाइड बाय 1/8, फेस सेंटर्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो टोटल किन्ने हो गए? A 4। B किथे किथे है? एज दे सेंटर ते और 1/4 कंट्रीब्यूशन जाती है प्लस 1 बॉडी सेंटर, सो 4A हो गए। सो A दे भी 4, B दे भी 4, सिंपलेस्ट रेशो ले लो, फॉर्मूला इज AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल दे विच अनायंस जेड़े है कॉर्नर ते मौजूद है और कटायन जेड़े है सेंटर ऑफ ऑल ऑल्टरनेट फेसेस। सो इत्थे वर्ड ऑल्टरनेट फेसेस है, इनू याद रखना है, ठीक है। सवाल च जो जिद्दां किया गया। सो Y जेड़े अनायंस है वो कॉर्नर से मौजूद है, तो इनका मतलब Y किन्ने होंगे पर यूनिट सेल पर क्यूब? 1। Y नेगेटिव जेड़े हैं दैट विल बी इक्वल टू 1। और X जेड़े हैं दे आर एट द सेंटर ऑफ ऑल्टरनेट फेसेस। सो ऑल्टरनेट फेसेस दे सेंटर ते हैं। सो X पॉजिटिव दी कंट्रीब्यूशन कितनी होएगी? यस, इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, इट विल बी 3/2। सो X पॉजिटिव इज इक्वल टू 3/2। सो अपने को इस दे बाद आ जाता है रेशो देखनी है आपा, x किन्ने है 3/2, y है 1, सो रेशो कम्स आउट टू बी 3:2।
बेटा रेशो किद्दां लैनी है, ये आंदी है तुहानू? यस, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਨੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਔਰ 2 ਕੈਂਸਲ ਔਰ ਇੱਧਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ 3:2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਕਮਸ x3y2। तो नेक्स्ट जेडे आपां करने हैं वो है 3 मार्क्स क्वेश्चन जेडे कि न्यूमेरिकल्स होंगे और डेंसिटी ते बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। सो डेंसिटी दा फॉर्मूला बेटा आपां सारियां ने पहला ही कीता है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर एंड A क्यूब। हुण बेटे इस सवाल दे विच इस फॉर्मूले चों आपां नूं कोई जिन्नी आप इत्थे चीज़ां देख रहे हैं एवोगैड्रो नंबर आपां नूं हमेशा ही याद रहिंदा ना, ठीक है। सो ये बाकी दियां 4 चीज़ां दे विचों दी आपां नूं कोई 3 दित्तियां होणगियां ते चौथी आपां कढनी होएगी। जिवें इस सवाल दे विच देखो डेंसिटी आपां नूं क्रोमियम मैटल दी दित्ती हुई है, कितनी दित्ती हुई है 7.2 ग्राम, ठीक है, पर सीसी। और यूनिट सेल क्यूबिक है, एज लेंथ यानी कि स्मॉल ए वो कितना दिता हुआ है 289 पिकोमीटर। बेटा इत्थे 289 पिकोमीटर नू आपां सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना है क्योंकि जिहड़ी डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो पिकोमीटर नू आपां जदों सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना है सो 289 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 ये बन गए सेंटीमीटर। सो आपां जदों ए क्यूब करांगे तां इहदा क्यूब करांगे, ठीक है। कई बारी फॉर्मूले दे विच ही इत्थे 10⁻⁻30 लिखिया हुंदा है, ठीक है, 10⁻⁻10 दा क्यूब कीता होया इत्थे। सो इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान च रखना है। सो ठीक है, सो आपां डिटरमिन द टाइप ऑफ यूनिट सेल आपां सारियां वैल्यूज पुट कर दिन्ने, डेंसिटी दी वैल्यू पुट कर दिन्ने, इत्थे आपां Z कैलकुलेट करना है। सो Z दे विच ਜਦੋਂ इस फॉर्मूले दे विचों दी आपां Z एक पासे कर लिए तो फॉर्मूला बन जाएगा Z इज इक्वल टू रो एक पासे, ये दोनों चीज़ां ऊपरले पासे चलिया गईयां, ठीक है, रो A क्यूब NA और M जड़ा है वो डिनोमिनेटर च आ गया। वैल्यूज पुट करो, डेंसिटी 7.2 है, देन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है, A क्यूब, ठीक है। सो मोलर मास बेटा आपां नूं इत्थे दिता होया है, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52 AMU। सो आपां 52 ग्राम इत्थे मोलर मास लै लिया। सो अपने कोले Z दी कितनी वैल्यू आ जाती है 2। सो Z2 आया है, दैट मीन्स इट इज BCC। अगर बेटे Z4 आंदा तां इन्हें FCC होना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलीमेंट दा मोलर मास दिता होया है, FCC यूनिट सेल, FCC देख के ही Z4 डेंसिटी कितनी दिती हुई है आपां नूं, डेंसिटी इज 6.23 ग्राम पर सीसी। देन आपां एज लेंथ कैलकुलेट करनी है, एज लेंथ का मतलब है कि आपां A कैलकुलेट करना है। सो वैल्यूज पुट करो, डेंसिटी की थां ते 6.23, Z4 है, मोलर मास 60 आपां नूं दिता होया है, A क्यूब इस फॉर्मूले चो साडा निकलिया आएगा। सो जो A क्यूब निकलिया आया बेटा तो उन्होंने आपां जो क्यूब रूट कर लवांगे तो A दी जिहड़ी वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 400 पिकोमीटर। इत्थे ध्यान नाल देखो जिहड़ी A क्यूब दी वैल्यू आई है ना वो सेंटीमीटर्स च है ते आपां उन्होंने पिकोमीटर च कन्वर्ट किया है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलीमेंट जिन्ना मोलर मास दिता होया BCC स्ट्रक्चर है ते एज लेंथ 400 पिकोमीटर दिती हुई है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो BCC मतलब Z इज इक्वल टू 2, A दी वैल्यू 400 पिकोमीटर मतलब 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करांगे, Z दी वैल्यू 2, मोलर मास 100 गिवन है, A दी वैल्यू दिती हुई है आपां नूं, पिकोमीटर च आपां कन्वर्ट कर लिया, क्यूब कर लिया, एवोगैड्रो नंबर और डेंसिटी दी वैल्यू अपने कोले आ गई 5.188 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो बेटे आपां एक चीज याद रखो कि जदों अपने कोले डेंसिटी दा फॉर्मूला ZM ओवर एवोगैड्रो नंबर A क्यूब,
इस सवाल दे विच एक तां आपां नूं जिहड़ी ए दी वैल्यू है ना वो पिकोमीटर च दित्ती हुंदी है, असीं ओनू सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज़ इन्ना बच्चे कई बारी क्यूब करना भूल जाते हैं, ठीक है। सो क्यूब जरूर करना है। सो इन्हां चों Z सिंपल क्यूबिक लिए 1 होएगा, इनू याद कर लो, रट्टा लगा लो। सिंपल क्यूबिक दे लिए Z1 होएगा, BCC दे लिए Z2 होएगा और FCC वास्ते Z4 होएगा। इस तो अलावा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A और R ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, A ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, एज लेंथ, ਜਿਹੜਾ क्यूब है ना उनकी एज लेंथ, दिस डिस्टेंस, सारिया एजेस एज लेंथ है ਜਿਹੜੀਆਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ना क्यूब ਚ। सो दिस इज A एंड व्हाट इज R, ਜਿਹੜਾ रेडियस ऑफ सफीयर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं R, दिस डिस्टेंस इज R। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बेटा गल करते हैं कि BCC है या सिंपल क्यूबिक है, पहला तो जो सिंपल क्यूबिक है तो आप A इज इक्वल टू 2R, ये याद रखो। BCC है तो अपने को √3A विल बी इक्वल टू 4R और जे FCC है अपने को तो फॉर्मूला होएगा √2 विल बी इक्वल टू 4R। ये कन्वर्शनस क्योंकि कई बार आपां नूं डेंसिटी दे नुमैरिकल चों जदों A तो निकल आंदा अपने को पर आपां नूं रेडियस पुछ लैंदे आ। सो जदों A असीं कैलकुलेट कर लिया तो उनदे तो R कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो विद दिस बेटा आई एम समिंग अप द होल नुमैरिकल्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ हैं। ਪਹਿਲਾਂ बेटे ਆਪਾਂ Z ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ कि कॉर्नर्स ਤੇ प्रेजेंट है तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स हैं, जे एज सेंटर ते हैं तो लाइक 1/4 इंटू 12, ठीक है। जे बॉडी सेंटर च है तो 1 उत्थे होएगा, तो जे फेस सेंटर ते हैं तो किन्ने फेसिस होंदे हैं तो किन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन होंदी है, 6 फेसिस होंदे हैं तो हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होंदी है, 3 एटम्स। सो एक तो आपां नूं ये चीज़ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए है। दूसरा बेटे आपां नूं रेडियस रेशो दा टेबल याद होना चाहिए। सो रेडियस रेशो टेबल तो आपां नूं की पता लगता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सानू ज्योमेट्री पता लग जाती है, ठीक है। सो ये सवाल जिहड़े हैं आपां नूं 1 और 2 मार्क्स च पूछे जाते हैं। डेंसिटी वाला सवाल बेटे आपां नूं 3 मार्क्स च पूछा जाता है और अक्सर इस तो अगे A और R दा रिलेशन भी पूछ लिता जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि हुण तुहानूं ये चीज़ां समझ लग गईयां होणगीਆਂ। न्यूमैरिकल्स बेटा प्रैक्टिस वास्ते तुहानूं मैं होर दे दूंगी इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच वीडियो दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम।